Hello friends, welcome to my channel. Today we are going to talk about Taurus Ascendant and how the month of September 2022 is going to pan out for the Taurus Ascendant people. For Taurus Ascendant, the Ascendant Lord is Venus and it is passing through the 4th house till 23rd of September, where it is going to be aspected by Mars through the 4th aspect. Ascendant Lord passing through the 4th is considered very good because 4th house also showcases peace of mind. And in this case, Venus will ensure that you are going to have a very good time with your family or people who are nearer or dearer to you till 23rd of September. So all those people who have ascendant lord in the 4th house and that too a benefic like a Venus or a Jupiter in the birth chart, that shows that not only they will have peace of mind throughout their lives, but in their old age they will live a even more peaceful life because the 4th house shows the last stage of life. So if you have any such placement in your birth chart, then you should consider yourself as extremely lucky. The 4th house lord happens to be Sun for the Taurus ascendant people, and it is also going to be stationed in its own sign till 16th, and post that it will move into the 5th house in the sign of Virgo. What it would mean is that you will experience a very good time in the first half of the month as far as the security from home or home environment is concerned, and in the second half you will enjoy gains from your house or property because the house lord will be moving to the second house from its original position, which again indicates a kind of income. Here in the 5th house it will get an aspect from Jupiter. So seventh aspect of Jupiter will be on Sun after 16th of September. So looking at both the Venus as well as Sun, month of September will work out very well on the domestic front for the Taurus ascendant people. Venus also owns the 6th house of debt, enemies, health, services and litigation. So post 23rd September, Lord of 6th would start the transition from the 5th house. What it will mean is that people who are in jobs or service, they will start to face problems from the last week of September, and Ketu is also sitting in the 6th house for these people, and it is already making the life difficult for all the Taurus ascendant people who are in jobs. So from 24th of September, people in jobs should expect some headwinds. Now we will also look at Mars. Mars is passing through the first house, which means that it is going to provide immense amount of energy to the Taurus ascendant people. It is going to fill them with new initiatives and is going to provide them with a lot of ambition. This Mars is the owner of 7th house as well as 12th house. So Mars will continue to aspect its own house in September, and Jupiter is also aspecting the 7th house through its ninth aspect. So people who are unmarried have a very high probability of getting married or finding a suitable partner in this month. People who are already married will also spend a very good time in the company of their spouse. Mars is transitioning through the star of Moon. So month of September will also be about doing a lot of effort and taking some well calculated risks. People will continue to seek your opinion since the seventh lord is passing through the first house, and you will continue to evolve yourself in the work areas that are related to public domain. People who have businesses related to export import or any kind of a dealing with the foreigners, especially in the arena of petrochemicals and specialty chemicals, explosives, or even in the defense sector, they will see a very good time during the month of September. Fifth house lord is Mercury for Taurus ascendant people, and it is going to pass through its own house. Further, it is also going to receive the protective aspect of Jupiter. So people who are involved in the jobs that are shown by fifth house, all kinds of artists, creators, speculators, people who are in education, this month of September is going to be extremely favorable for you guys. Jupiter is passing through the 11th house. It is considered a very auspicious position for Jupiter, and it is from this position it is going to aspect your third house of effort, your fifth house of your progeny, and your seventh house of your spouse. So people who are recently married, they will continue to have very high probability of getting a progeny in the month of September, and this kind of a blessing will continue to be there in the background till the time Jupiter is placed in the 11th house, which is April 2023.
Saturn is passing through the ninth house and it is also passing through the constellation of Mars. Therefore, it is opening the window for you to seek an opportunity in a foreign country. So, if you have businesses that are related with foreigners, then Saturn will continue to provide additional support to such businesses in the month of September. People with Saturn in the ninth house in their birth chart should always aim for moving to a foreign country because Saturn opens the doors for them to progress in their life. So, this kind of a placement in the birth chart for Saturn is always considered benefic for Taurus ascendant people. Now, there are also certain days when person needs to be very careful, and these are the dates when the moon passes through your 6th, 8th, and 12th houses. Taurus ascendant people, these dates are 1st of September, 4th and 5th of September, 13th and 14th of September, and 27th, 28th, and 29th of September. In total, 8 days, but 27th to 29th of September is the date where you need to be very, very careful about your health. Otherwise, overall, the month of September is pretty good for Taurus ascendant people. They will continue to experience a lot of peace of mind and domestic happiness throughout the month of September. So, this is the summary for the Taurus ascendant people for the month of September. If you have liked my video, please do subscribe to my channel and thank you very much for watching. नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जानने का प्रयत्न कर रहे हैं कि वृषभ लग्न वालों के लिए सितंबर 2022 का महीना कैसे साबित होगा। सबसे पहले हम लोग लग्नेश को देखते हैं। वृषभ लग्न वालों के लिए लग्नेश शुक्र बनते हैं जो कि चतुर्थ भाव से भ्रमण कर रहे हैं और ये यहाँ पे 23 सितंबर तक बने रहेंगे। जब भी लग्नेश चतुर्थ भाव से गुजरते हैं तो ये बहुत अच्छी स्थिति कहलाती है क्योंकि चतुर्थ भाव आपके घर के वातावरण को दिखाता है, आपकी माता को दिखाता है और आपकी मानसिक शांति को दिखाता है। और यहाँ पर लग्नेश शुक्र हैं जो कि एक बहुत ही अच्छा ग्रह कहा जाता है, बहुत बेनिफिक प्लैनेट कहलाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 23 सितंबर तक आप घर में बिल्कुल शांति बनी रहेगी, डोमेस्टिक एनवायरनमेंट बहुत अच्छा रहेगा। तो यहाँ से जाता हुआ शुक्र आपको बहुत अच्छा समय यानी कि मौज का समय दिलवाएगा अपने परिवार के साथ, अपने जो भी आपके नियर एंड डियर लोग हैं उन लोगों के साथ। 23 सितंबर तक डोमेस्टिक हैप्पीनेस के लिए बहुत अच्छा समय है। जितने भी लोगों का जन्म कुंडली में लग्नेश चतुर्थ भाव में होता है और मृदु ग्रह होता है यानी चंद्र है हो गया या फिर शुक्र या गुरु, तीन ग्रह हैं लेकिन चंद्र थोड़ा कम पावरफुल होता है, शुक्र और गुरु बहुत पावरफुल कहे जाते हैं। लग्नेश का चतुर्थ भाव से जाना, और अगर जन्म कुंडली में ऐसी स्थिति है तो ये बहुत ही अच्छा होता है। ऐसे व्यक्ति बहुत लकी कहलाते हैं। इनको हमेशा सुख मिलता है जीवन में जो कि हर व्यक्ति ढूंढना चाहता है, और इनका बुढ़ापा भी बहुत शांति से बीतता है क्योंकि चतुर्थ भाव आपके जीवन की लास्ट स्टेज दिखाता है। इसीलिए इस तरह का कॉम्बिनेशन अगर आपकी जन्म कुंडली में है तो ये बहुत अच्छी स्थिति होती है, आप बहुत लकी व्यक्ति हैं। ऐसा अगर आपकी जन्म कुंडली में है कॉम्बिनेशन तो यहाँ पर सितंबर के महीने में चतुर्थ भाव का स्वामी सूर्य भी 16 सितंबर तक अपने ही भाव में बैठा हुआ होगा। इसलिए इसके बाद चतुर्थ से पंचम भाव में निकल जाएगा। 17 सितंबर से महीने के अंत तक वर्गो साइन में बैठा रहेगा, कन्या साइन में। तो यहाँ पर इसका मतलब ये बनता है कि सूर्य भी आपको मानसिक शांति देने का काम करेगा चतुर्थ भाव में अपना ही घर होने की वजह से। और इसके बाद जब वो 16 सितंबर के बाद पंचम भाव में चला जाएगा तो पंचम भाव चतुर्थ से दूसरा है, यानी कि आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड या अपनी माता के थ्रू भी कुछ गेन्स हो सकते हैं सितंबर के सेकंड हाफ में। कुल मिला के अगर आप दोनों को देखेंगे, शुक्र को और सूर्य को, तो ये दोनों ही ग्रह आपको मानसिक शांति दिलाने का काम करेंगे और परिवार से सुख दिखाएंगे। सितंबर के महीने में पूरा महीना आपका बड़े चैन आराम के साथ बीतेगा जो कि सारे लोग चाहते हैं अपने जीवन में। और सूर्य जब यहाँ से गुजरेगा द्वितीय भाव में तो गुरु की भी दृष्टि उसके ऊपर पड़ेगी। तो ओवरऑल बहुत अच्छा समय है डोमेस्टिक फ्रंट पे वृषभ लग्न वालों के लिए। अब शुक्र यहाँ पर प्रथम भाव का मालिक बनता है और छठवें भाव का मालिक बनता है। तो 23 सितंबर के बाद जब शुक्र पंचम भाव में मूव कर जाएगा तो छठवें भाव का स्वामी पंचम भाव से जाना, यानी 23 सितंबर के बाद जितने भी लोग नौकरियों पेशा लोग हैं, स्वयं का व्यवसाय नहीं, जिनकी नौकरी है, उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल समय शुरू हो जाएगा क्योंकि
लास्ट वीक ऑफ सितंबर में जब ये कॉम्बिनेशन बनेगा तो छठवें भाव का स्वामी पांचवें भाव से निकलेगा। और यहाँ पर दिक्कत ये है, अगर आप नौकरी वाले, तो केतु भी छठवें भाव में बैठ के आपको आपकी नौकरी से काट रहा है, जिसकी वजह से ये डबल ट्रबल टाइप की स्थिति बन जाएगी वृषभ लग्न वालों के लिए। तो थोड़ा सा सावधान रहिए, क्योंकि 24 सितंबर के बाद नौकरी में आपको थोड़ा सा कठिनाई का माहौल बनना शुरू होगा। मंगल प्रथम भाव से गुजर रहे हैं सितंबर के महीने में। यहाँ पे मंगल जब भी लग्न से गुजरता है तो व्यक्ति में गुस्सा लाने का काम करता है, उसमें एक ऊर्जा भर देता है। जिनके भी प्रथम भाव में मंगल रहता है उनको बहुत गुस्सा आता है, जिनके भी जन्म कुंडली में होता है, यानी उनकी बात कर रहा हूँ। तो इन ऐसे लोग को अपना टेम्पर कंट्रोल रखने में बहुत दिक्कत होती है। तो मार्च जब यहाँ से गुजरेगा प्रथम भाव से, तो वृषभ लग्न वालों के लिए एनर्जी लेके आएगा, एम्बिशन भी देता है, महत्वाकांक्षी बनाता है आपको मंगल। और इस लग्न के लिए मंगल सप्तम और 12वें भाव का स्वामी बनता है। तो मंगल यहाँ पे स्वयं के घर को देख रहा है, और गुरु भी नवी दृष्टि से 7वें भाव को देख रहा है। तो जितने भी लोगों की शादियां नहीं हुई हैं उनकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है शादी फिक्स होने की या शादी होने की इस महीने में। और जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं उनके लिए भी अच्छा समय है, क्योंकि वो अपने पति या पत्नी के साथ अच्छा समय बिता पाएंगे सितंबर के महीने में। मंगल यहाँ पे चंद्र के नक्षत्र से गुजरेगा, तो इस महीने में इनको काफ़ी मेहनत भी करनी पड़ेगी। और कुछ अगर ये लोग वेल कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं तो इनके लिए अच्छा रहेगा सितंबर के महीने में। यहाँ पे लोग आपको आके आपकी ओपिनियन पूछते रहेंगे सितंबर के महीने में, आपसे आके सलाह मांगेंगे। अगर आप किसी भी पब्लिक डोमेन के इसमें इन्वॉल्व हैं, सोशल वर्कर हैं या फिर पॉलिटिक्स में हैं, तो ये सितंबर का महीना आपकी प्रेस्टीज बढ़ाने का काम करेगा। जितने भी लोग ऐसे बिजनेसेस में हैं जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट से संबंध रखता है, या किसी भी तरह से आप फॉरेनर्स के साथ डील करते हैं अपने बिजनेस में, एमएनसी में हैं, या आपका ऐसा बिजनेस है जो कई कंट्रीज में फैला हुआ है, या फिर आप पेट्रोकेमिकल्स के क्षेत्र में हैं, स्पेशलिटी केमिकल्स, एक्सप्लोजिव्स या डिफेंस सेक्टर में हैं, तो भी सितंबर का महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एक नज़र बुध पे डालते हैं। बुध पंचम स्वामी के मालिक हैं और पंचम से ही गुजर रहे हैं। यहाँ पे 30 सितंबर के बाद इनको सूर्य और शुक्र भी आके ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन ये सारों का एक साथ गुरु की दृष्टि पड़ेगी। तो जितने भी लोग पंचम भाव से जुड़े हुए व्यवसाय में हैं, यानी कि कला क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, या खिलाड़ी हैं स्पोर्ट्स क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, या फिर स्पेक्यूलेटर्स हैं, सट्टेबाजी में, उनके लिए भी सितंबर का महीना बहुत ही अच्छा रहेगा। गुरु 11वें भाव से गुजर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा पोजीशन कहलाता है गुरु के लिए। यहाँ से अपनी दृष्टि से पंचम भाव को देखते हैं, तो जितने भी लोगों की नई शादियां हुई हैं उनको ये संतति दे सकते हैं जब तक गुरु यहाँ बैठे हैं 23 सितंबर तक। जितने लोगों की शादियां नहीं हुई हैं उनकी शादियां भी करा सकते हैं। तो गुरु की स्थिति बहुत अच्छी है, तो इसका आप लाभ उठा सकते हैं अप्रैल 2023 तक। ऋषभ लग्न वाले, शनि 9वें भाव से गुजर रहे हैं। शनि का 9वें भाव से भ्रमण हमेशा ही अच्छा कहलाता है, क्योंकि ये इस बार सितंबर के महीने में मंगल के नक्षत्र से गुजरेगा, तो ये आपके लिए दरवाजे खोल रहा है फॉरेन जाने के। राहु भी 12वें भाव में बैठा हुआ है, शनि भी मंगल के नक्षत्र से गुजरेगा जो कि 12वें भाव का स्वामी है। तो सब तरफ से फॉरेन जाने के दरवाजे खुल रहे हैं। अगर आप फॉरेन जाने चाहते हैं तो ये अच्छा समय रहेगा सितंबर का महीना। अगर आपके व्यवसाय हैं जो कि फॉरेनर से जुड़े हुए हैं, तो भी ये शनि आपको एक एडिशनल सपोर्ट देता रहेगा सितंबर के महीने में। जितने भी लोगों की लग्न कुंडली में ही शनि 9वें भाव में बैठा होता है उनको खास करके सलाह दी जाती है कि आप फॉरेन जाइए, क्योंकि फॉरेन जाने से शनि आपका एक लक बिल्ड करने का कार्य करता है और आपके तरक्की के दरवाजे खोलता है। अभी ऐसे कुछ दिन होते हैं जब व्यक्ति को सावधान रहना चाहिए। ये वो दिन है जब चंद्र आपके 6, 8 और 12वें घर से गुजरता है। जो सितंबर के महीने में सावधान रहने वाले दिन है वो हैं 1 सितंबर, 4 और 5 सितंबर, 13 और 14 सितंबर, और 27, 28 और 29 सितंबर। ये सारे दिनों में सावधान रहिए, लेकिन खास करके 27 से 29 सितंबर के टाइम में सावधान रहिएगा और अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा। ओवरऑल ये काफी अच्छा महीना रहेगा वृषभ लग्न वालों के लिए। हर व्यक्ति मानसिक शांति खोजता है और यहाँ पे आपको वो पूरा महीना भर मिलेगी। तो ये समरी है आपकी टॉरस असेंडेंट के लिए सितंबर के महीने में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।